Assalamu alaikum. Going to the part 6 of coordination compounds chapter, where we'll start the discussion about different theories which explain the formation of coordination compounds, and they will explain now about the properties shown by coordination compounds. We'll begin with the first important theory, that is called as Werner's theory of complexes. No, Alfred Werner. He is the first person to prepare the coordination compounds. ओके, अल्फ्रेड वर्नर साहब यही है पहले शख्स जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स प्रिपेयर किए हैं एंड वी कॉल हिम एज द फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बिकॉज he has synthesized many different coordination compounds and he has told about how these coordination compounds are formed. He has given some postulates, that is based on experimental results. He has given certain postulates which will tell us how coordination compounds are formed and what properties they show. He was the first person to prepare coordination compounds using cobaltous chloride, COCl3, and he treated with excess of ammonia. By treatment with between these two chemical reagents, he got different varieties of coordination compounds, and based on the properties shown by those samples of coordination compounds, he concluded some results and conclusions he has written, and that conclusions he has given in the form of postulates. Let's see which are those postulates one by one. Postulates of Werner's theory of complexes. Now, according to Werner's theory, a central metal atom or ion in a complex exhibits two types of valencies, that is primary and secondary valency. मतलब इस थियरी के मुताबिक एक सेंट्रल मेटल एटम दो तरीके से कंबाइन होता है, वैलेंसी यानी कि कंबाइनिंग कैपेसिटी। एक सेंट्रल मेटल एटम दो तरीके से कंबाइन होता है और दोनों कंबाइनिंग मेथड्स को हम बोलते हैं, एक को हम बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी और दूसरे को हम बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। देखते हैं अब ये प्राइमरी वैलेंसी क्या है और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है। Primary valency is the oxidation state of central metal atom or ion which is ionizable and variable. Primary valency क्या है? It is oxidation state of central metal atom or ion. यानी कि हम जो X लेके कैलकुलेट करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, वो प्राइमरी वैलेंसी कहलाएगा. It is called as primary valency. What is its nature? It is ionizable and variable. Then it is satisfied by only negative ions. Primary valency is satisfied by only negative ions. अब जैसे कि एग्जाम्पल, जब हम एक क्यूपरामोनियम सल्फेट लेते हैं, इसमें कॉपर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैलकुलेट करेंगे, आपको मिलेगा x, जैसे कि यहाँ पे x प्लस ये 4 इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, ये सल्फेट का -2 इक्वल टू जीरो, देयरफॉर यू विल गेट x इक्वल टू +2. ये +2 को हम बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी. दिस 2 is called as the primary valency, meaning that is oxidation state of central metal atom or ion, right? So primary valency of copper is +2. अब इस +2 को हम क्या बोल रहे हैं? इट इज आयोनाइजेबल एंड वेरिएबल. इसका मतलब होता है कि कॉपर का यहाँ पे चार्ज आपको +2 मिला. अब कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स अगर आप कॉपर का लेंगे, वहां पे उसका चार्ज +1 भी हो सकता है, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं. तो यहाँ पे +1 +2 है, दूसरे कंपाउंड में +1 आ सकता है. प्लैटिनम का कभी 2 कभी 4 आता है, आयरन का +2 +3 आता है. इस वजह से हम प्राइमरी वैलेंसी को हम वेरिएबल बोलते हैं. आयोनाइजेबल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स में पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए जो स्पीशीज रहेंगे, पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए? नेगेटिव आयॉन्स चाहिए. तो इसमें नेगेटिव आयॉन सल्फेट आयॉन है. ये क्या करता है? कॉपर की प्राइमरी वैलेंसी यानी कि कॉपर के पॉजिटिव या +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को बैलेंस करता है, क्योंकि कॉपर का चार्ज +2 है, सल्फेट का चार्ज होता है -2. तो ये क्या होता है? वाटर में जैसे ही डिसॉल्व करो ये आयोनाइज हो जाता है. That's why we call it as it is ionizable and variable, right? It is satisfied by only negative ions, means पॉजिटिव चार्ज है, उसको बैलेंस करने के लिए आपको कैसे स्पीशीज चाहिए? नेगेटिव.
क्योंकि ओवरऑल कॉम्प्लेक्स में टोटल पॉजिटिव चार्ज के बराबर टोटल नेगेटिव चार्ज होना जरूरी है, देन ओनली इट विल बी ओवरऑल न्यूट्रल, राइट? सो दिस इज द फर्स्ट postulate. First of all, central metal atom ion exhibits two types of valencies, primary and secondary. What is primary valency? It is oxidation state of central metal ion which is ionizable and variable. It is satisfied by only negative ions. Okay. अब जैसे कि कोई और एग्जांपल लेंगे, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ CO NH3 6, कोबाल्ट का चार्ज होता है कॉमनली +3, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ Cl3, राइट? तो x लेके कैलकुलेट करेंगे तो आपको यहाँ पे कोबाल्ट का चार्ज मिलेगा +3, उस +3 को हम बोलेंगे प्राइमरी वैलेंसी। उसकी प्राइमरी वैलेंसी कौन सेटिस्फाई कर रहे हैं? 3 क्लोराइड आयन, because always it is satisfied by negative ions. 3 chloride ions will satisfy primary valency of cobalt. How it is ionizable, यानी कि ब्रैकेट के पार्ट जितने भी स्पीशीज आते हैं आयोनाइज हो जाते हैं, they come out, they separate out from that complex, right? Next, coming to secondary valency, let's see what is secondary valency. Secondary valency is the coordination number of central metal atom or ion. What is coordination number? It is the number of coordinate bonds formed by the ligands with the central metal atom or ion. Ligands जितने भी coordinate bond form करेंगे metal atom के साथ, उसको हम बोलते हैं coordination number. So secondary valency is nothing but coordination number of central metal atom or ion. How it is? It is non-ionizable and fixed for a particular metal. That is, coordination number is generally 4 or 6 for different metal atoms. तो सेकेंडरी वैलेंसी सिंपल नथिंग बट कोऑर्डिनेशन नंबर, जो हम ब्रैकेट के अंदर नंबर ऑफ लिगैंड्स मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी करते हैं वो होता है सेकेंडरी वैलेंसी। अब जैसे कि एग्जांपल, उसके आगे फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। एग्जांपल लेते हैं। अब ये ऑलरेडी हम एग्जांपल देखे हैं जहाँ पे कॉपर का हम प्राइमरी वैलेंसी चेक कर रहे हैं। अब देखते हैं सेकेंडरी वैलेंसी क्या है। सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर इस कॉपर का इस कॉम्प्लेक्स में कितना है? 4। 4 is coordination number of copper because 4 amine ligands will form 1 coordinate bond, right? तो इसका सेकेंडरी वैलेंसी कितना है? 4। कौन बैलेंस कर रहे हैं इसकी सेकेंडरी वैलेंसी? अमाइन लिगैंड्स। इसका सेकेंडरी वैलेंसी 4 होता है। 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स कौन फॉर्म कर रहे हैं? 4 अमाइन लिगैंड्स, दैट इज 4 अमाइन मॉलिक्यूल्स, दैट इज 4 अमोनिया मॉलिक्यूल्स, राइट? सो दैट इज नथिंग बट secondary valency which is coordination number. How it is non ionizable, यानी कि ब्रैकेट में जो स्पीशीज होते हैं जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करते हैं ये आयोनाइज नहीं होते हैं, दे रिमेन अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन, दे डू नॉट आयोनाइज व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। इस वजह से हम इसको बोलते हैं नॉन आयोनाइजेबल। वाटर में डिसॉल्व करो सिर्फ सल्फेट बाहर आ जाएगा, अंदर वाले स्पीशीज बाहर नहीं आएंगे, राइट? एंड फिक्स्ड फॉर ए पर्टिकुलर मेटल। कभी भी मेटल एटम्स जितने भी देखते हैं हम, इनके कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर्स होते हैं 6 या फिर 4। जैसे कि कोबाल्ट के तकरीबन कॉम्प्लेक्सेस में उसका सेकेंडरी वैलेंसी यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। प्लैटिनम का भी 6 आता है। कॉपर है ज़्यादातर 4 रहेगा, सिल्वर है कोऑर्डिनेशन नंबर 2 रहता है, लेकिन मेजॉरिटी कॉम्प्लेक्सेस में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है या फिर उसके बाद हम प्रेफरेंस देते हैं 4, राइट? इस वजह से हम बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी इज फिक्स्ड फॉर ए पर्टिकुलर मेटल। Okay, next, how it is satisfied by negative ions or neutral molecules. कौन सेकेंडरी वैलेंसी बैलेंस करते हैं? या तो नेगेटिव आयंस या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी बैलेंस करने के लिए एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करना पड़ता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन फॉर्म करते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज, राइट? अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज नेगेटिव आयंस होते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी होते हैं या फिर पॉजिटिव आयंस भी आते हैं, लेकिन ज्यादातर कॉम्प्लेक्सेस में नेगेटिव आयन लिगैंड के तौर पे होता है या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स लिगैंड के तौर पे रहते हैं। आइदर नेगेटिव लिगैंड्स और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स विल एक्ट एज लिगैंड्स, हेंस दे ऑलवेज सैटिस्फाई
सेकेंडरी वैलेंसी। ओके, और एक एग्जांपल लेते हैं, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ये कॉम्प्लेक्स देखते हैं K4FeCN6। इसमें आप X लेके आयरन का चार्ज कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा +2, राइट। और ये +2 को बैलेंस करने के लिए नेगेटिव आयंस चाहिए। अब यहाँ पे एक स्पेशल केस है, नेगेटिव आयंस बाहर नहीं है क्योंकि ये ओवरऑल कॉम्प्लेक्स बन गया। पोटेशियम ये सेकेंडरी वैलेंसी को बैलेंस नहीं करता क्योंकि पोटेशियम का चार्ज होता है पॉजिटिव। प्राइमरी वैलेंसी कौन सेटिस्फाई करते हैं कभी भी? नेगेटिव आयंस। सो प्राइमरी वैलेंसी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड बाय दिस पोटेशियम। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो आयरन का रहेगा उसको सेटिस्फाई करने के लिए आपको नेगेटिव आयंस चाहिए। तो बाहर ही रहना बोल के जरूरी नहीं है। लिगैंड्स जो नेगेटिव लिगैंड्स रहते हैं ये डुअल रोल प्ले करेंगे, यानी कि वो अंदर रहने के बाद प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर सकते हैं और सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करते हैं। जैसे कि इस कॉम्प्लेक्स में 6 साइनाइड्स है, देयर आर 6 साइनाइड्स, आउट ऑफ 6 2 of the cyanide, because cyanide charge is -1, 2 cyanides will satisfy the primary valency of iron, क्योंकि इसका आयरन का चार्ज होगा +2, तो +2 को बैलेंस करने के लिए चाहिए -2, तो -2 कहां से आएगा? इन 6 में से 2 साइनाइड आयंस इसके +2 चार्ज को बैलेंस करेंगे। अब सेकेंडरी वैलेंसी की बात आती है। सेकेंडरी वैलेंसी आयरन का है 6, कौन सेटिस्फाई कर रहे हैं? 6 साइनाइड लिगेंड्स। These 6 cyanide ligands are satisfying the secondary valency, right? मतलब ओवरऑल 6 में से 2 ऐसे लिगैंड्स हैं जो आयरन की प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, प्राइमरी वैलेंसी को भी बैलेंस कर रहे हैं, राइट? तो इस तरह सेकेंडरी वैलेंसी इज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन। इट इज नॉन आयोनाइजेबल, यानी कि अब ये आयोनाइज नहीं होगा, राइट, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है, नॉन आयोनाइजेबल and fixed for a particular ion, and it is always satisfied by negative ions or neutral molecules, right? Now if you take about secondary valencies, again secondary valencies simply it indicates the coordination number, that is number of coordinate bonds, and we know that coordinate bonds are directional in nature. कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स डायरेक्शनल बॉन्ड्स है। जब भी डायरेक्शनल बॉन्ड्स आते हैं कोई मॉलिक्यूल में तो वो मॉलिक्यूल का एक डेफिनेट ज्योमेट्री रहेगा और वो आइसोमरिज्म भी एग्जिबिट करता है। सो सेकेंडरी वैलेंसीज आर directional and are directed in space to give definite geometrical shape to the complex and exhibit isomerism. ठीक है, तो इतने postulates आपको याद रखना है। पहला postulate है central metal atom or ion has two types of valencies, namely primary and secondary. उसके बाद आपको primary क्या है और उसे कौन satisfy करते हैं वो बोलना है, secondary क्या है और कौन से species satisfy करते हैं वो बोलना है, बाद में ये लास्ट में secondary valencies are directional, ये पॉइंट आपको लिखना है। ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन कॉमनली आता है, 3 मार्क्स के लिए पूछते हैं, तो ये पूरे पोस्टुलेट्स आपको लिखना है। एग्जाम्पल्स आर नॉट रिक्वायर्ड, आई हैव जस्ट मेंशन्ड फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पस, ओनली यू हैव टू राइट द पोस्टुलेट्स। अब ये पोस्टुलेट का एक्सप्लेनेशन आगे यहाँ पे कर लेंगे। अब जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, सो अल्फ्रेड वर्नर ही टुक कोबाल्टस क्लोराइड एंड ही मिक्स्ड अमोनिया इन डिफरेंट प्रपोर्शंस। तो ये अलग अलग सैंपल्स हैं जो अल्फ्रेड वर्नर ने प्रिपेयर किए थे। कंपोजिशन कैसा है? कोबाल्टस क्लोराइड वाज कॉमन इन ऑल, ओनली व्हाट ही डिड वाज ही वेंट ऑन चेंजिंग द amount of ammonia, that is here he has taken 6 moles of ammonia, then in the next case he has taken 5 moles of ammonia, and here 4 moles, right, and here 3 moles. He went on changing the concentration of ammonia. तो यहाँ पे देखते हैं अलग अलग सैंपल्स प्रिपेयर करने के बाद when he got this sample, it was yellow in color, this was purple, this was green, again same composition here, violet, and the last the color was not predictable. तो यहाँ पे mentioned है colors। अब इनके प्रॉपर्टीज देखते हैं। ये कंपाउंड प्रिपेयर होने के बाद 4 आयॉन्स प्रोड्यूस हो रहे थे सोल्यूशन में, टोटल आयॉन्स जो प्रोड्यूस हो रहे थे 4, राइट, एंड
he carried out one more experiment. He treated these compounds with silver nitrate solution, क्योंकि उसको पता करना था कि व्हाइट पीपीटी आता है या नहीं आता है, आता है तो कितना आता है वो देखना था। क्योंकि व्हाइट पीपीटी क्यों आएगा, इस कंपाउंड में क्लोराइड है, और क्लोराइड का हम डिटेक्शन करते हैं सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट से, राइट। सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट करते हैं क्लोराइड के डिटेक्शन के लिए। जैसे ही सिल्वर नाइट्रेट ऐड करते हैं हम क्लोराइड सॉल्यूशंस में, कर्डी व्हाइट पीपीटी आता है, right? So he went on checking whether you will get the white PPT or not. If he gets white PPT also, how much it will be obtained. तो ही यहाँ पे क्या किया वो, moles of PPT he went on calculating. तो पहले सैंपल में आयोन्स का प्रोडक्शन कितना हो रहा था, 4 आयोन्स। पीपीटी कितने मोल्स मिल रहा था, 3 मोल्स। एंड ही वेंट ऑन विथ वन मोर एक्सपेरिमेंट, मोलार कंडक्टेंस यानी कि कंडक्टिविटी मेजर करना। सोल्यूशन प्रिपेयर करने के बाद कितना करंट पास होता है यानी कि कंडक्टेंस कितना होता है वो चेक करना, दैट इज कॉल्ड एज मोलार कंडक्टेंस। कंडक्टेंस ड्यू टू 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंडक्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इट्स कॉल्ड एज मोलार कंडक्टेंस। तो यहाँ पे मोलार कंडक्टेंस की वैल्यू कितनी मिली, 430। तो इस ऑब्जर्वेशन से ये पता चलता है कि मेन इंपॉर्टेंट यहां पर 4 आयोन्स मिल रहे हैं और पीपीटी कितना मिल रहा है, 3 मोल्स। प्रेसिपिटेशन कब होगा, फ्री क्लोराइड आयोन्स रहने के बाद, राइट। प्रेसिपिटेशन कब होगा, फ्री क्लोराइड आयोन्स रहने के बाद। अब यहां पे AgNO3 प्लस 1Cl minus I'll write, you will get AgCl PPT प्लस NO3 माइनस। मतलब ये हो गया 1 मोल ऑफ क्लोराइड आयोन विल प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट। रिमेंबर 1 मोल ऑफ क्लोराइड आयोन विल प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ प्रेसिपिटेट। यहाँ पे आपको कितने मोल्स मिल रहे हैं, 3 मोल्स ऑफ प्रेसिपिटेट। तो 3 मोल्स का मतलब क्या हो जाएगा, 3 क्लोराइड आयोन, 3 मोल्स ऑफ क्लोराइड आयोन आर प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। मतलब 3 क्लोराइड आयोन फ्री है। तो इसका ये मालूम होता है कि ये कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म हुआ है, तीनों क्लोराइड आयोन ब्रैकेट के बाहर है, यानी कि कॉम्प्लेक्स पेयर में नहीं है, ब्रैकेट के बाहर है, राइट। तो ब्रैकेट के बाहर रहने के बाद ही आपको ये प्रेसिपिटेट मिलेगा। तो अगर इस कंपाउंड को हम ये रिजल्ट के बेसिस पे किस तरह लिख सकते हैं, आपको स्ट्रक्चर ये मिलेगा, कोबाल्ट NH3 टेकन 6 टाइम्स, आउटसाइड द ब्रैकेट यू राइट Cl3। कैसे मालूम हो रहा है 3 क्लोराइड बाहर है बोल के, इन रिजल्ट से यू आर गेटिंग 3 मोल्स ऑफ प्रेसिपिटेट विच शोज दैट 3 क्लोराइड आर आउटसाइड द ब्रैकेट। तो बचते क्या है आपके पास, कोबाल्ट बचता है और 6 मोल्स ऑफ अमोनिया बचता है, यानी कि उसको आप NH36 लिखेंगे और बाहर जो है क्लोराइड 3 बाहर रखेंगे। अब ये नंबर ऑफ आयोन्स प्रोड्यूस 4, ये वैल्यू कैसा आ रहा है। अब सपोज ये कंपाउंड आयोनाइज करते हैं, जो अब मैं लिखा हूं यहाँ पर, इसको आप जब आयोनाइज करेंगे ये कंपाउंड को आप, तब क्या होगा, आपको मिलेगा CONH3 6, 3 क्लोराइड बाहर जा रहे हैं तो इसके ऊपर आएगा चार्ज 3 प्लस प्लस 3Cl माइनस, राइट। मीन्स हाउ मेनी, कितने आयोन्स हो गए यहाँ पे, 1 मोल प्लस 3, टोटली यू आर गेटिंग 4 मोल्स ऑफ आयोन्स और 4 नंबर ऑफ आयोन्स आर 4, राइट। तो इस तरह ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स है जिसके बेसिस पे आप उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर इजीली लिख सकते हैं। दूसरे कंपाउंड को आते हैं। दूसरे कंपाउंड का सैंपल क्या है, COCl3 5NH3, पर्पल कलर्ड मिलता है। नाउ अब ये कॉम्प्लेक्स जैसे ही फॉर्म हुआ, बाद में डिटेक्शन करने के बाद ये पता चला कि उस कॉम्प्लेक्स में टोटली 3 मोल्स ऑफ आयोन्स है, इट कंटेन्स 3 मोल्स ऑफ आयोन्स। अब सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट करने के बाद पता चला कि क्लोराइड कितने हैं, इट वाज गिविंग 2 मोल्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड पीपीटी। पहले यहाँ पे मिला था 3 मोल्स, अब यहाँ पे मिल रहा है 2 मोल्स। तो 2 मोल्स का मतलब क्या होता है, 2 ही क्लोराइड आयन बाहर है, ओनली 2 क्लोराइड आर आउटसाइड, लेकिन कंपोजिशन में 3 है। तो और एक कहाँ जाएगा, अंदर ब्रैकेट के अंदर। क्योंकि कभी भी कॉम्प्लेक्सेस में मेटल आटम क्या करता है, अपनी प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी को मेंटेन करता है। इट विल मेंटेन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी तो सब में कोबाल्ट है तो +3 ही रहेगा, सेकेंडरी वैलेंसी को फिक्स रखता है,
यानी कि अंदर ब्रैकेट के अंदर कैसा भी करके कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना है। तो यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ प्रेसिपिटेट के मुताबिक, और यहाँ पे कंडक्टिविटी भी कम हो गया क्योंकि आयोन्स कम हो गए तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगा, यानी कि मोलार कंडक्टेंस कम हो गया। तो इससे ये प्रूव होता है कि आप जब इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो हम लिखेंगे CONH3 NH3 है। तो अभी और एक कोऑर्डिनेशन नंबर चाहिए, यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड 5 फॉर्म हो गया जैसा हो गया, और एक चाहिए तो एक क्लोराइड हम लिख देंगे। टोटली आपके पास कितने 3 क्लोराइड, तो एक अंदर लिख के ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी सेकेंडरी वैलेंसी पूरी हो गई, 5 + 1 6। अब बचते हैं 2 क्लोराइड, उसको हम बाहर लिखते हैं Cl2, राइट। क्योंकि ये कंपाउंड जब आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा CONH3, यहाँ पे जो 6 आया था अब मिलेगा 5Cl, यहाँ पे आएगा 2+, और ये बन जाएंगे 2Cl-। कितने आयोन्स आ रहे हैं देखो, 2 + 1, 3 आयोन्स। एज पर द रिजल्ट यू विल गेट 3 आयोन्स। पीपीटी कितना मिलेगा आपको, 2 मोल्स, क्योंकि 2 ही क्लोराइड बाहर है, 2 मोल्स ऑफ प्रेसिपिटेट यू विल गेट। सो यू कैन राइट द फॉर्मूला एज CONH3 5Cl Cl2। ओके, नेक्स्ट सैंपल को आते हैं। नेक्स्ट सैंपल देखो, कलर COCl3 4NH3 है ग्रीन, और यहाँ पे वायलेट है। सेम कंपाउंड है, सेम कंपोजिशन है। यहाँ पे कंपोजिशन पहले 6 मोल था, बाद में 5 आ गया, लेकिन ये दोनों का 4 है। इससे ये प्रूव होता है कि ये दोनों आइसोमर्स है। They have the same molecular formula but they exhibit different properties. So they can show any type of isomerism. That's why one is green in color, the other is violet. Results दोनों के same है। 2 moles of ions produce, 1 mole of PPT produce, same molar conductance. Only thing is the color is different. It indicates that these two are existing in isomeric form. अब देखते हैं इस कंपाउंड, दोनों कंपाउंड का फॉर्मूला क्या आएगा। कितने आयोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, 2 कैटायोन्स और आयोन्स मिला के 2। पीपीटी कितने मिल रहा है, 1 मोल। इसका मतलब क्या हो गया, एक क्लोराइड ब्रैकेट के बाहर होगा, 3 में से एक क्लोराइड बाहर रहेगा, और अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा, रहना चाहिए 6। तो यहाँ पे कितने अमोनिया है, 4, 2 क्लोराइड अंदर रहेंगे, हो जाएगा 6। तो फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, CONH3 4Cl2Cl, राइट। अब इस कंपाउंड को आयोनाइज करो, क्या मिलेगा आपको, जब आप आयोनाइज करेंगे क्या मिलेगा, CONH3 4Cl2। ऊपर आएगा, कोबाल्ट का चार्ज होता है 3, 3 में से -2 कर दो, यहाँ पे आएगा प्लस, और एक आयन कौन सा है, Cl-, राइट। यानी कि ये एक आयन, ये एक आयन, 2 आयन्स। द रिजल्ट इज 2 आयन्स। पीपीटी कितना मिल रहा है, 1 मोल। 1 मोल क्यों मिल रहा है, क्योंकि एक ही क्लोराइड बाहर है। यू विल गेट 1 मोल ऑफ पीपीटी, राइट। So that's why we write the formula as CONH3 4Cl2Cl। यहाँ पे भी वही। अब लास्ट जब कंपाउंड को आएंगे तो देखते हैं कंपोजिशन क्या है, COCl3 3NH3, 3 moles of ammonia is used now. So when this compound was prepared, he found that no ions were produced, कुछ भी ionization ही नहीं हो गया, and he did not get any PPT also. PPT मिलना चाहिए था क्योंकि क्लोराइड है, लेकिन PPT सिल्वर नाइट्रेट ऐड करने के बाद भी नहीं मिला, तो इससे कंडक्टिविटी भी नहीं मिला। कंडक्टिविटी कब आता है, आयोन्स रहने के बाद। आयोन्स ही नहीं है तो कंडक्शन भी नहीं होगा, राइट। तो इससे ये प्रूव होता है कि आयोनाइजेशन ही नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो इसके बेसिस पे हम फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, CONH3 taken 3 times Cl3, because all the chloride are inside the bracket because you are not getting any PPT. Then coordination number is also satisfied, 3 + 3 that will become equal to 6. तो आपको कभी भी कॉम्प्लेक्सेस में क्या देखना है, उसकी प्राइमरी वैलेंसी पर्टिकुलर मेटल की जो है या तो +2 या +3 जो भी है, उसके अलग अलग सैंपल्स जब बनाएंगे आप तो वो एज इट इज +3 रहेगी। स्पीशीज जो है नेगेटिव स्पीशीज उसको बैलेंस करते हैं, एज वी हैव डिस्कस्ड इन द पोस्टुलेट्स, प्राइमरी वैलेंस इज ऑलवेज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयोन्स, और वो नेगेटिव आयोन्स या तो ब्रैकेट के अंदर भी हो सकते हैं, ब्रैकेट के बाहर भी हो सकते हैं। लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है, वैसे स्पीशीज जो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं
वो कभी भी ब्रैकेट के अंदर ही आना है, दे डू नॉट आयोनाइज, राइट। सो हियर व्हाट वी आर डूइंग इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करने वाले स्पीशीज यहाँ पे क्लोराइड भी है, अमोनिया भी है, लेकिन क्लोराइड बाहर भी आ सकता है नेगेटिव काउंटर आयन के जैसा, लेकिन अमाइन नहीं आ सकता। अमाइन बाहर आ गया तो एक सॉल्वेंट की तरह एक्ट करेगा, राइट। तो इस वजह से अमाइन की क्वांटिटी, हमें अमोनिया की क्वांटिटी कम होते जा रही है, तो अमोनिया की क्वांटिटी कम होने से कोऑर्डिनेशन नंबर कम होते जाएगा ब्रैकेट के अंदर। तो उसको बैलेंस करने के लिए एक एक करके क्लोराइड अंदर आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो क्लोराइड अंदर आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्लोराइड दो फंक्शन कर रहा है। इट इज satisfying primary valency -1 charge for cobalt and along with that it is forming one coordinate bond। उसी तरह यहाँ पे ये दो क्लोराइड प्राइमरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, सेकेंडरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। यहाँ पे भी वही, यहाँ पे तीनों क्लोराइड, लास्ट केस में तीनों क्लोराइड प्राइमरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, सेकेंडरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये जो बाहर के क्लोराइड है सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी कर रहे हैं। बाहर वाले क्लोराइड क्या करते हैं, सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं। लेकिन जब कोई नेगेटिव आयन अंदर आता है ब्रैकेट में, तो उसके दो काम रहते हैं, it will balance primary valency as well as secondary valency, right? So based on all these observations, so Alfred Werner, he postulated so many conclusions in the form of postulates, what we have discussed earlier, right? So this is the way you can represent the structure of complexes. Central metal atom बीच में, जो स्पीशीज सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं उसको हम डैश लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो स्पीशीज प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं उसको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मेथड है वर्नर थियरी के कॉम्प्लेक्सेस को रिप्रेजेंट करने का। स्पीशीज दैट सेटिस्फाई सेकेंडरी वैलेंसी are shown by dash line, species that are satisfying primary valency are shown by dotted line। तो इस एग्जाम्पल में तीन क्लोराइड सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इस वजह से इनको डॉटेड फॉर्म में मेंशन किया गया है। और 6 अमाइन लिगेंड्स, अमोनिया लिगेंड्स, अमोनिया मॉलिक्यूल सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे हैं, जिसको हम डैश लाइन से बता रहे हैं। दूसरे सैंपल में देखो आप, 5 अमोनिया मॉलिक्यूल्स आर सेटिस्फाइंग सेकेंडरी वैलेंसी, 2 chloride ions are satisfying primary valency and 1 is satisfying both primary as well as secondary। तो दो क्लोराइड को हम डॉटेड लाइन से बताए हैं, और एक क्लोराइड को हम दोनों भी लाइन बताए हैं, डैश लाइन और डॉटेड लाइन। इसका मतलब दिस क्लोराइड इज सेटिस्फाइंग प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी, राइट। ये एग्जांपल देखो, कोबाल्ट NH3 4Cl2, सेकेंडरी वैलेंसी को दोनों स्पीशीज ये कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, 4 अमोनिया मॉलिक्यूल और 2 क्लोराइड। और प्राइमरी कौन कर रहे हैं, यहाँ पर एक क्लोराइड बाहर है और 2 क्लोराइड अंदर, ये तीनों मिला के प्राइमरी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। स्ट्रक्चर में आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा, 1 2 3 4 अमोनिया मॉलिक्यूल, दे आर सेटिस्फाइंग सेकेंडरी वैलेंसी, ओनली प्राइमरी 1 क्लोराइड, right? And this chloride, what they are doing, they are satisfying primary as well as secondary, they are satisfying primary as well as secondary, okay। यहाँ पे लास्ट स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे, CONH3 taken thrice and Cl3 ब्रैकेट, यानी कि न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बन गया क्योंकि आयोनाइज नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 अमोनिया मॉलिक्यूल प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे हैं, 1 2 3, और बाकी का सेकेंडरी वैलेंसी कौन सेटिस्फाई कर रहे हैं, 3 क्लोराइड। तो ये तीनों क्लोराइड क्या कर रहे हैं, प्राइमरी भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, सेकेंडरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। यू कैन सी हियर प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, राइट। So this is the way how we represent the Werner structures. Always primary valency is shown by dotted line, secondary valency is shown by dash line. If a species is satisfying both the valencies, then you have to show dash line as well as dotted line. कुछ limitations हैं Werner's theory के। Now in this theory we have come across, it has not explained why certain elements possess the property of forming complex compounds. Usually what happens in complexes, we have seen
ट्रांजिशन एलिमेंट्स और एक्टिनाइड्स दे हैव द एबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्सेस। उनके पास ही ये एबिलिटी क्यों है उसका एक्सप्लेनेशन इस थियरी में नहीं है, राइट? क्यों है हमको पता है, बिकॉज दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन रेट, दे हैव वेकेंट डी ऑर्बिटल, दे हैव हाई पोलराइजिंग पावर। इसके वजह से ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, लेकिन उसका जिक्र इस थियरी में नहीं है। दैट वाज वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ दिस थियरी। इट डज नॉट एक्सप्लेन द डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। अब ये जो हम स्ट्रक्चर्स देखे हैं ये वर्नस स्ट्रक्चर्स है, लेकिन थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स का यहाँ पे कुछ भी जिक्र नहीं है, जैसे कि टेट्राहाइड्रल, ऑक्टाहाइड्रल, that nothing has been explained in this part. It will not explain sub properties like magnetic and optical properties. Magnetic property, yani whether the compound is diamagnetic or paramagnetic, that has not been explained in this theory. And the main important, it does not explain how a species satisfies both primary and secondary valency at a time. हमने देखा है अलग अलग एग्जाम्पल्स में, अंदर जो नेगेटिव स्पीशीज आता है अंदर ब्रैकेट के अंदर कॉम्प्लेक्स पेयर के अंदर, वो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी एट ए टाइम कैसे सेटिस्फाई करता है उसका एक्सप्लेनेशन भी इस थियरी में नहीं है। हाउ इट कैन डू, हाउ इट कैन सेटिस्फाई दोज टू वैलेंसीज एट ए टाइम, that has not been explained in this theory, right? Overall, many of the postulates are satisfied based on the experimental results, hence we follow this Werner's theory। यानी कि जो पूरे थियरीज एक एक पार्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में बोलते जाते हैं और हर एक थोड़े ड्रॉबैक्स है, तो आपको ड्रॉबैक्स को जो है इग्नोर करके मेन इंपॉर्टेंट क्या एक्सप्लेनेशन उस थियरी से मिल रहा है, कौन से प्रॉपर्टी का एक्सप्लेनेशन मिल रहा है, उसके ऊपर हम फोकस करते जाते हैं, राइट? एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। दे हैव गिवन राइट द सेकेंडरी वैलेंसीज ऑफ मेटल्स and structure of compound in the following based on the observations provided। आपको कुछ कंपाउंड्स के एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स प्रोवाइड करे हैं, आपको उन कंपाउंड्स में उन सेंट्रल मेटल आटम का सेकेंडरी वैलेंसी यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है और उसका स्ट्रक्चर यानी कि उसका फॉर्मूला क्या हो सकता है वो लिखना है, राइट? देखते हैं। फर्स्ट कंपाउंड दे हैव गिवन पैलाडियम क्लोराइड and here you are having ammonia, NH3, पैलाडियम क्लोराइड एंड NH3। तो यहाँ पे क्या दे रहे हैं, 2 moles ऑफ प्रेसिपिटेट दे रहे हैं। here I'll write 4, फोर इज मिसिंग here, so I'll write 4 here। तो यहाँ पे पैलाडियम क्लोराइड 4NH3 ये कंपोजिशन दिए हैं और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट क्या दे रहे हैं, हाउ मच यू आर गेटिंग सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट व्हेन ट्रीटेड विद सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट करने के बाद कितने मोल्स आपको प्रीपीटी मिल रहा है, सो यू आर गेटिंग 2 मोल्स ऑफ प्रेसिपिटेट। तो इससे ये पता चलता है कि 2 क्लोराइड ब्रैकेट के बाहर है, कॉम्प्लेक्स पेयर के बाहर है, क्योंकि बाहर रहने के बाद ही ये आपको पीपीटी मिलेगा, अंदर रहे तो नहीं मिलेगा। तो अब बचते क्या है आपके पास, 4 अमोनिया मॉलिक्यूल, ये ब्रैकेट के अंदर रहेंगे और ये क्या करते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं। दे सेटिस्फाई सेकेंडरी वैलेंसी। तो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो गई, कितने अमोनिया मॉलिक्यूल है, 4, तो हम इसका सेकेंडरी वैलेंसी लिखेंगे 4, राइट? और फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, 2 क्लोराइड आपको बाहर लिखना है, बाकी के स्पीशीज को आपको अंदर लिखना है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ब्रैकेट ओपन करो, पैलाडियम यहाँ पे आएगा NH3 टेकन 4 टाइम्स, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे ये आएगा क्लोराइड Cl2, क्योंकि ये जब आप आयोनाइज करेंगे आपको मिलेगा PdNH3 2 प्लस आयोन प्लस 2 क्लोराइड आयोन। तो फॉर्मूला ये बन जाएगा, क्योंकि पीपीटी के हिसाब से आप क्लोराइड को बाहर लेना है, राइट? सेकेंडरी वैलेंसी देख सकते हैं कितना मिला आपको यहाँ पे, 4। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। NiCl2 6H2O है, यहाँ पे भी 2 मोल्स ऑफ पीपीटी मिल रहा है। 2 मोल्स ऑफ पीपीटी मिल रहा है मतलब सेकेंडरी वैलेंसी क्या बचेगा, क्या हो रहेगा,
अब बाकी के स्पीशीज लिगैंड की तरह एक्ट करेंगे। कितने स्पीशीज हैं? 6 वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी कि एक्वा लिगैंड्स। 6 water molecules, that is aqua, will act as ligand and they will form coordinate bonds with nickel. तो 2 क्लोराइड बाहर लेना है, 6 वाटर मॉलिक्यूल को अंदर लेना है लिगैंड्स के जैसा। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा? 6। फॉर्मूला क्या लिखेंगे? NiH2O टेकन 6 टाइम्स, बचा क्या आपके पास? क्लोराइड Cl2, राइट। ये हो गया फॉर्मूला इस कॉम्प्लेक्स के लिए। नेक्स्ट देखो, PtCl4 2HCl, इट इज नॉट गिविंग एनी पीपीटी। हालांकि यहाँ पे 4 क्लोराइड और ये 2 क्लोराइड, 6 क्लोराइड है, 6 chlorides are there, then also it is not giving any PPT, means all those 6 chlorides are inside the bracket. अब ये बचते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कैन नॉट एक्ट एज ए लिगैंड, हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एक्ट एज ए लिगैंड। ये उल्टा एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर, डोनेट नहीं करेगा क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं रहते हैं। अब कौन डोनेट करते हैं? क्लोराइड्स। तो टोटल कितने क्लोराइड है यहाँ पे? 6, राइट। तो यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी इसकी हो जाएगी ये 4 और ये 2 क्लोराइड 6। फॉर्मूला क्या लिखेंगे? क्योंकि पीपीटी कुछ भी नहीं मिल रहा है, पूरे क्लोराइड अंदर रहेंगे, तो हम लिखेंगे प्लैटिनम क्लोराइड, हाउ मेनी? 6, राइट। प्लैटिनम क्लोराइड यू विल बी गेटिंग 6। अब -6 चार्ज हो जाएगा, ऐसा तो प्लैटिनम का चार्ज होता है 4, ओके। तो उसको हम बैलेंस करते हैं, यहाँ पे 4 - 6 होता है -2, और ये -2 को हम बैलेंस कर रहे हैं 2H+ आयन्स। ओके, बस आपको इतना लिखे तो काफ़ी है, अंडरस्टैंड हो जाएगा। मेन आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर में करेक्ट लिखना है, कितने स्पीशीज सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं और कौन है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, COCl3.4NH3, कितने मोल्स प्रेसिपिटेट मिल रहा है? 1 मोल। इसका मतलब क्या हो गया? एक क्लोराइड ब्रैकेट के बाहर आएगा। कितने क्लोराइड है अपने पास? 3। 3 में से एक क्लोराइड बाहर है, जिसकी वजह से आपको 1 मोल पीपीटी आ रहा है। तो बचे हुए 2 क्लोराइड अंदर रहेंगे ब्रैकेट के अंदर, लिगैंड के जैसा। 2 क्लोराइड रहेंगे और ये 4 अमोनिया मॉलिक्यूल रहेंगे ब्रैकेट के अंदर, राइट। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? ये 4 और इसमें के 2, 3 में से 2 यानी कि 6। यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है? 6। फॉर्मूला क्या लिखेंगे इसका भी? CONH3 taken 4 times, then you will have Cl2, 1 chloride outside the bracket. This you will get the formula, ठीक है। लास्ट को आते हैं, PtCl2 2NH3, यू आर नॉट गेटिंग एनी पीपीटी, कुछ भी पीपीटी नहीं मिल रहा है, मतलब पूरे स्पीशीज ब्रैकेट के अंदर होंगे क्योंकि वो आयोनाइज नहीं होंगे। तो कौन से स्पीशीज है अपने पास? 2 क्लोराइड है और 2 अमोनिया मॉलिक्यूल है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 2 + 2 4। सेकेंडरी वैलेंसी हियर इट विल बी अगेन 4। स्ट्रक्चर क्या आएगा? प्लैटिनम, दैट इज डाइअमाइन डाइक्लोराइड, diamine dichloride platinum 2. This will be the structure for this complex, right? तो अक्सर क्वेश्चंस आते हैं थियरी में, 1 मार्क के लिए पूछ सकते हैं, आपको जो है ऐसा डेटा देंगे, you will be given PtCl2 2NH3 upon treatment with AgNO3 gives no PPT, what can be the formula of this or structural formula of this compound, you have to write like this। या फिर CET नीट में भी पूरे ऑब्जर्वेशंस आपको देते हैं, करेक्ट कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है आपको आइडेंटिफाई करना रहता है। तो आइडेंटिफाई करते वक्त आपको ध्यान देना है
पीपीटी कितने मोल्स मिल रहे हैं वो देखना, उसके हिसाब से आप उतने स्पीशीज को ब्रैकेट के बाहर रखना है, राइट। दूसरी चीज़, कभी कभार आयोन्स देते हैं, इन दीज मेनी आयोन्स आर प्रोड्यूस्ड, तो इसके हिसाब से भी आप फॉर्मूला अंदर ब्रैकेट के अंदर कितने रखना है और ब्रैकेट के बाहर कितने रखना है वो भी देखना है। यूजुअली पीपीटी का रिजल्ट ज़्यादातर देते हैं, आपको केयरफुली वो देख के फॉर्मूला लिखते जाना है, ठीक है। सो दिस इज रिगार्डिंग वर्नर्स थ्योरी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस